So we are on chapter number 11, the match for a green cause. Okay. So what happens in this chapter? This chapter is about a township. Township मतलब एक society के बारे में है. This society is with Sawan. The society's name is Sawan, and there's a chemical factory nearby. उसके पास में एक chemical factory है. And what has happened in the beginning of the chapter, that the township has organized a school cricket tournament, and who has won this, who has reached the finals of the tournament. So the school of Sawan, it has reached to the finals of the tournament. So now Ashok and Raju, they are the various players of the cricket team, and they are very happy because for the first time they have reached to the tournament फाइनल्स. ओके, पहली बार ये लोग फाइनल्स में पहुंचे हैं. सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम फाइनल्स भी जीत के आएंगे. So now they start practicing for finals, but when they are on the ground and they are practicing for the finals, what happens? Everyone is feeling uneasy. You know, for example, someone is their eyes are irritating, someone cannot breathe properly, someone is coughing. Such problems they are facing. Okay, they are facing many problems. किसी को कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, किसी की आंखें जल रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट दे ऑल आर फीलिंग अनईजी. ओके, so what happens now? Their captain Ashok, he sees that his eyes are red. His mother sees that his eyes are red and his eyes are getting irritated. So Ashok goes to the doctor. Ashok goes to the doctor, and there he sees that Raju has also come to the doctor with his mother. Raju भी आया वहाँ डॉक्टर के लिए पास में. अशोक की आंखें लाल हो चुकी है and Raju is coughing. Okay, so दोनों अपनी problems लेके आए हैं. And the doctor at the clinic, he suggests Ashok that you have an acute allergy, कि आपको जो है एलर्जी हो रखी है आपकी आंखों में, एंड यू शुड अवॉइड गोइंग आउट मच, कि आपको बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए. नाउ अशोक इज द कैप्टन ऑफ द टीम, सो अशोक इज वेरी अनहैप्पी एंड वेरी सैड दैट अब वो प्रैक्टिस कैसे करेगा. अशोक इज सैड दैट हाउ इज ही गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ फॉर द टूर्नामेंट फाइनल्स, की फाइनल्स के लिए वो प्रैक्टिस कैसे करेगा. अशोक इज फीलिंग वेरी बैड and he is feeling sad for the team. Okay, so children, let's discuss the assignment questions. Yeah, so I guess I had given you an assignment on page number 33. Yeah, 33, sorry, 31 it was. So I gave you an assignment, the questions on page number 31. Okay, so let's discuss the questions. For which purpose, just a second children. Yeah, for which purpose the children are showing their concern. So all the children of Sawan Township, they are showing their concern for protecting the environment, for protecting the nature. Okay, the game was sponsored, which game was sponsored by the factory, and who was the chairman of the factory? So which game was sponsored by the factory? The Sawan School Cricket Tournament. It was organized, it was sponsored by the factory. Sponsor करना मतलब उसके लिए organize करना, उसके लिए पैसे देना. टूर्नामेंट है, उसमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा देना, पैसा लगेगा. सो ये सब कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? द केमिकल फैक्ट्री. ओके, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय the chemical factory nearby. And who is the chairman of the factory? Mr. Pradhan is the chairman of the factory. At which place were they practicing for the game? कौन सी जगह पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? So chemical factory के पास में there was a ground. Okay, there was a ground near the chemical factory, and all the children were practicing on that ground, at that ground. Okay, सब लोग वहीं पे practice कर रहे थे. There was a ground nearby. Okay, children, just give me a thumbs up, everyone. Continue with the chapter. So what has happened in the chapter? Now Ashok को बोला है डॉक्टर ने कि आपको बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना है, and he is feeling really sad. Okay, so let's move on the next page, page number 33. Yeah, but the smoke is making it impossible for us even to practice. Sunil was angry. अब भी जो केमिकल फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है, इसकी वजह से लोगों को आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, लोग कफ कर रहे हैं, उनको सबको प्रॉब्लम हो रही है, and everyone is getting irritated by it. So Sunil says,
Someone is writing in the chat room. Harshita Soni is saying, ma'am, please speak a bit loudly. Okay, Harshita, please raise your hand. Harshita, please raise your hand. Happens in the chapter. The smoke from the chemical factory is irritating everyone. जो chemical factory से जो smoke है वो सबको बहुत परेशान कर रहा है, सब लोगों को उसकी वजह से problems हो रही है. The smoke is making it impossible for us even to practice. So Sunil was angry. Sunil को बहुत गुस्सा आ रहा था कि smoke की वजह से हम practice भी नहीं कर पा रहे ठीक से. Which smoke? Smoke from the chemical factory. We have to do something about the smoke or we cannot play the match. So now Sunil says कि हमको कुछ करना पड़ेगा, otherwise we will not be able to play the match. कि हम मैच ही नहीं खेल पाएंगे अगर हम ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं कर पाए स्मोक की वजह से. तो let us meet Mr. Pradhan in the morning. I will come with you, suggested Ashok. So अब अशोक जो है उनका कैप्टन है, उसने सजेस्ट किया कि हम लोग सब लोग मिलके what should we do? We should meet Mr. Pradhan. Mr. Pradhan से मिलने जाते हैं मॉर्निंग के अंदर और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा. अशोक says कि I will come with you. They all went to the factory to see Mr. Pradhan. अब सब लोग फैक्ट्री सब लोग ने क्या किया? They all went to the factory to see Mr. Pradhan. Mr. Pradhan से मिलने गए सारे के सारे टीम के बच्चे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम जो है वो मिस्टर प्रधान को बता सके. Sir, the smoke from the factory is affecting all of us, added Sunil. So Sunil now tells Mr. Pradhan that the smoke from the chemical factory is affecting all of us. The smoke from the factory is giving us allergies, is giving us irritation. कि जो स्मोक आ रहा है फैक्ट्री से उसकी वजह से हमको एलर्जी हो रही है, हमको आईज में इरिटेशन हो रहा है, वी ऑल आर कफिंग. In short, all the children were facing problems, various health problems because of the smoke from the chemical factory. Mr. Pradhan went into the details of the past couple of days. अब मिस्टर प्रधान ने क्या किया, जो केमिकल फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन हो रहा था एंड उन्होंने जो 2 दिन की जो डिटेल्स थी, पिछले 2 दिन की डिटेल्स थी, वो उन्होंने निकाली कि क्या और भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या क्या हो रहा है एग्जैक्टली फैक्ट्री के अंदर. सो ही फाउंड आउट द डिटेल्स. ही वॉज डीपली कंसर्न. अब उनको थोड़ी चिंता होने लगी. ही वॉज कंसर्न कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. ही सेड आफ्टर अ पॉज, we do have plans for putting in air filters and planting trees around the colony, but somehow they got postponed due to insufficient funds. Okay, insufficient मतलब कम, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ काफी कम. Okay, funds का मतलब पैसे, और postpone करना मतलब कोई भी चीज बाद के लिए डाल देना, कोई भी चीज हम बाद में करेंगे, postpone हो जाना. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाना, तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए मतलब एग्जाम्स अब बाद में होंगे. ओके, so what does Mr. Pradhan say? Mr. Pradhan says we do have plans, कि हमारा प्लान है कि हम एयर फिल्टर्स लगाएं, चिमनीज के अंदर एयर फिल्टर्स लगाएं ताकि चिमनी के अंदर से जो भी पोल्यूटेड एयर निकले वो फिल्टर होके आए. हमारा ये प्लान है. और हमारा ये भी प्लान है that we are going to plant trees around the colony, कि हम कॉलोनी में जो है ट्रीज भी लगाएंगे ताकि पोल्यूशन कम हो वहां पे. बट फिर भी, but somehow what happens, this plan of putting the air purifiers on this plan of planting the trees, this plan gets postponed each and every time due to insufficient funds, क्योंकि हमारे पास, हमारी फैक्ट्री के पास इतना ज्यादा पैसे नहीं है. सो इसलिए ये जो प्लान है of putting air purifiers, of planting trees, this plan gets postponed. हर बार postpone होता रहता है क्योंकि इतना फंड नहीं है कंपनी के पास में, इतना पैसा नहीं है कंपनी के पास में. Sir, if I may suggest, could you shut down the factory on the day of the match? asked Ashok hesitantly. अब अशोक ने हेजिटेंटली पूछा. हेजिटेंटली मतलब, प्लीज मार्क डाउन द मीनिंग. हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए, थोड़ा सुकुचाते हुए, कि हिचकिचाते हुए उसने पूछा. किसने? अशोक ने प्रधान को, मिस्टर प्रधान को. सर, इफ आई मे सजेस्ट, कि सर मैं एक सजेशन दूं, आप जो मैच वाला दिन है, on the day of the match, can you please shut down the factory? क्या आप उस दिन फैक्ट्री को बंद रख सकते हो ताकि स्मोक ना निकले और हम ठीक से खेल पाए. ओके, सो अशोक suggested that can you please shut down the factory on the day of the match, कि आप मैच वाले दिन आप फैक्ट्री बंद रख दोगे क्या प्लीज? अशोक asks Mr. Pradhan. After a few minutes of consideration, Mr. Pradhan agreed. So थोड़ी देर सोचने के बाद में मिस्टर प्रधान ने
अग्री कर दिया, मिस्टर प्रधान ने हाँ कर दिया, अग्री करना मतलब हाँ कर देना, ओके। आफ्टर ऑल सावन टू हैज अ स्टेक, ही सेड। तो सावन मतलब जो सिटी है, जो टाउनशिप है, उसका नाम है सावन। आफ्टर ऑल सावन टू हैज अ स्टेक, सो मिस्टर प्रधान ने कहा कि आफ्टर ऑल ऑब्वियसली सावन भी है, वो भी दाव पे लगा हुआ है, सावन जो है उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिटी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम उस दिन के लिए, क्रिकेट मैच वाले दिन के लिए फैक्ट्री को बंद रख देंगे, ठीक है। दैट वाज द डिस्कशन एंड दिस वाज द final decision which was taken, that we will shut down the factory on the day of the cricket tournament. It was decided by Mr. Pradhan. Okay. Okay, children, next page. The players were thrilled. Okay, अब जो players थे, जो सारे Mr. Pradhan के पास गए थे, they were thrilled, they were very happy. सब लोग खुश हो गए थे. They were thrilled, they were very excited. For their daily practice, they used an open field further away from the colony. अब वो डेली प्रैक्टिस के लिए वो क्या करते थे, एक ओपन फील्ड था, खाली फील्ड था कॉलोनी से थोड़ा दूर, और वहां जाके वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे। द डे ऑफ द फाइनल्स अराइव, सो फाइनली व्हाट हैपेंस, जो फाइनल का दिन था, क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल था वो आया, वो दिन आया, and the two teams came onto the field in their whitest of white uniforms. अब जो क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल्स में जो दो टीम्स पहुंची थी, एक तो कौन सी, सावन की टाउनशिप वाली जो टीम थी, और दूसरी कौन सी, जो दूसरी एक और टीम थी, जो दोनों टीम्स थी, दे अराइव्ड ऑन द ग्राउंड पे पहुंचे वो लोग, एंड दे केम टू द फील्ड इन वाइटेस्ट ऑफ वाइट यूनिफॉर्म, सबने व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी दोनों टीम्स ने। The Nawabs were oozing confidence. The Rajas nervous but optimistic. So what is the team? Teams के नाम क्या है दो teams के? Nawabs and second one is Rajas. Okay. एक टीम का नाम है नवाब्स और एक टीम का नाम है राजाज। The Nawabs were oozing confidence. अब जो नवाब्स जो टीम है, they were oozing confidence, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भर भर के आ रहा था, और जो दूसरी टीम है राजाज, they were nervous but optimistic. वो लोग थोड़े नर्वस थे, थोड़े से डरे हुए थे, लेकिन they were optimistic. वो पॉजिटिव थे कि हम जरूर जीतेंगे ये मैच। ओके, सो नवाब्स एक टीम और दूसरी टीम द राजाज। ओके, नेक्स्ट सॉरी, Mr. Pradhan tossed the coin and the Nawabs went to bat. Okay, so Mr. Pradhan ने कॉइन टॉस किया, जैसे अपने मैचेस में अंपायर कॉइन टॉस करता है, सिमिलरली मिस्टर प्रधान ने क्या किया, कॉइन टॉस किया, एंड पहली बैटिंग किसकी आई, नवाब्स की बैटिंग आई। The match was exciting, fought evenly by both the teams. So match जो था बहुत exciting था, एकदम thrilled match था, and दोनों जो teams थी, नवाब्स and राजास, they played very well. दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे, दोनों एकदम डट के खेल रहे थे। The successful partnership between Raju and Ashok got the home team the trophy and sum of 20,000 along with. Okay, so अब क्या हुआ, राजू और अशोक ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, बहुत अच्छी बैटिंग में पार्टनरशिप की, बहुत रन्स बनाए। राजू एंड अशोक की जो सक्सेसफुल पार्टनरशिप थी, जो उन्होंने मिलकर रन्स बनाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो होम टीम थी, होम टीम कौन सी हुई, जो सावन की टीम है, सावन टाउनशिप की जो टीम है वो होम टीम है, और एक और टीम जो है वो बाहर से खेलने आई है, इन दोनों के बीच में फाइनल्स हो रहा है, ठीक है। एंड कौन फाइनली जीता, जो होम टीम थी, जो सावन की टीम थी, वो जीती। क्यों, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन राजू एंड अशोक, राजू और अशोक की सक्सेसफुल पार्टनरशिप की वजह से जो होम टीम थी वो जीत गए। एंड सब ऑफ 20,000 अलॉन्ग विद, और मैच जीतने के साथ साथ और एक चीज उन्होंने क्या जीती, 20,000 रुपीज एज अ प्राइज। ओके, 20,000 रुपीज का प्राइज भी उनको मिला। Ashok, the captain of the team, on behalf of all the teammates, announced to devote the sum of 20,000 rupees for planting trees and installing air purifiers in the factory. So अब अशोक ने क्या डिसाइड किया, अशोक जो कि कैप्टन था टीम का, उसने सबके बिहाफ में मतलब सब लोगों ने, सारी जो टीम थी उन्होंने डिसाइड किया, अशोक ने और दूसरे लोगों ने भी, अशोक और दूसरे प्लेयर्स ने भी क्या डिसाइड किया कि ये जो हमको प्राइज मनी मिली है, ये हमको जो प्राइज मनी मिला है 20,000 रुपीज, व्हाट वी विल गिव दिस मनी, हम ये जो पैसा है, ये जो 20,000 रुपीज है प्राइज मनी, इसको हम क्या करेंगे, कॉलोनी के अंदर ट्रीज उगाने के लिए, और फॉर इंस्टॉलिंग एयर प्योरीफायर्स इन द फैक्ट्री, और फैक्ट्री की चिमनीज में
एयर प्यूरिफायर्स लगाने के लिए हम ये पैसा डोनेट करेंगे, हम ये पैसा देंगे ताकि चिमनीज के अंदर एयर प्यूरिफायर्स लग सके और पोल्यूशन कम हो सके और ट्रीज प्लांट किए जा सके। सब जो टाउनशिप है उसमें पौधे लगाए जा सके ताकि एयर पोल्यूशन कम हो वहां पे। All the people cheered on them for their concern and appreciated their steps towards building green city. So जो सारे लोग थे उन्होंने बहुत चेयर किया, उन्होंने बहुत सब उनको अपलॉड किया, सबने तालियां बजाई कि इनको प्राइज मनी मिला है, 20,000 रुपए मिले हैं। फिर भी उन्होंने ये मनी किसको दिया? फिर भी उन्होंने ये मनी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिया। किसको? टाउनशिप को के अंदर पेड़ लगाने के लिए और चिमनी के अंदर एयर प्यूरिफायर्स लगाने के लिए। इतना बड़ा अमाउंट था, इतना बड़ा प्राइज मनी था, फिर भी छोटे बच्चे थे वो, फिर भी दे कुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर, द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, कि नेचर को कम प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा, पोल्यूशन को कम करना जरूरी है, बजाय कि प्राइज मनी से कुछ चीजें खरीदने के। They were very concerned and they were mature enough to give this money, to donate this money for planting trees and for installing air purifiers in the chimneys in the factory. Okay, so all the people cheered on them, सब लोगों ने cheer किया and उनका जो concern था कि उन्होंने इतना ध्यान दिया कि हम लोग protect करेंगे nature को, हम लोग एयर पोल्यूशन कम करेंगे। so everyone appreciated their steps, सब लोगों ने appreciate किया कि अरे वाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने ऐसा किया। towards building the green city, hence they proved they played for a green cause। so इस तरीके से जो टीम थी उन्होंने प्रूव किया कि उन्होंने ग्रीन कॉज के लिए खेला है। ग्रीन कॉज का मतलब क्या हुआ? कॉज का मतलब एक कारण, किसी चीज के लिए आप जो खेलते हो, ठीक है। ग्रीन कॉज क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा जो अमाउंट है ये ग्रीन सिटी क्रिएट करने में दिया है, मतलब कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिया है, नेचर को कम नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। दैट्स व्हाई दैट इज इट वाज अ ग्रीन कॉज, एक ग्रीन कॉज था। ग्रीन कॉज मतलब जब आप नेचर को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन कॉज। आप प्लांट्स ट्रीज प्लांट करने का ट्राई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन कॉज। ओके, सो ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। टीम को प्राइज मनी मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने व्हाट डिड दे डू? जो टीम थी उन्होंने क्या किया? अपने सारे जो पैसे थे 20,000 रुपए वो कंपनी को डोनेट किए, वो फैक्ट्री को डोनेट किए, ताकि वो जो अमाउंट है वो एयर प्यूरिफायर्स के लिए और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जा सके। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। जो छोटे बच्चे थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि ये चीज ज्यादा जरूरी है, क्या? अभी नेचर को प्रोटेक्ट करना। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स मूव ऑन द ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कौन से ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करने हैं हमको? I just don't remember which are we supposed to do. So I guess we are on page number 32. Children, जो पेज नंबर 32 की ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, क्या वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी? जस्ट टेल मी, just tell me children, just raise your hand somebody and tell me जो पेज नंबर 32 की ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, क्या वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी? I just don't remember. Anshu, just please tell me. Yes, ma'am. सारे हो गए हैं ये फर्स्ट और सेकंड दोनों? Yes, ma'am. Okay, okay, please mute yourself. Okay, then let's continue with the oral response questions on page number 33. Okay. Yeah, so oral response questions on page number 33. Who was angry? Question number 1. Who was angry? Just a second here. Yeah. Who was angry? Yes, children, answer. Okay, Bharat, I'm unmuting you. Sunil was angry. Yeah, Sunil was angry. And why was he angry? वो angry क्यों था? Because of chemical factory smoke. Because of the smoke from the chemical factory. Okay. Okay, good. Please mute yourself. Bharat, please mute yourself. Next one is, whom did the boys meet? Whom did the boys meet? जो बच्चे थे वो किससे मिलने गए थे? Niharika, I'm unmuting you. Ma'am, the boys went to meet Mr. Pradhan. Yes, the boys went to meet Mr. Pradhan. Okay, children, again I'm requesting you. अब सारे जो ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उसको वहीं पे बुक में ही नोट डाउन कर लीजिए विद पेन और पेंसिल, प्रेफरेबली पेंसिल।
बुक के अंदर ही जो ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो नोट करिए, क्योंकि ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आएंगे। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट डोंट टेल मी बाद में कि आपने मैम हमको बताया नहीं कि आप ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी देंगे, हमको लगता था सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। नो, ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो उनको आप बुक में ही नोट करते जाओ, बुक में ही लिखते जाओ। ओके Okay, whom did the boys meet? The boys went to meet Mr. Pradhan, and Mr. Pradhan is the chairman of the factory, is the head of the factory. Question number 3, what was affecting them? What was affecting the team? Okay, Divyanjali, I'm unmuting you. Ma'am, the smoke from the factory is affecting. The smoke from the factory was affecting them. Okay, Divyanjali, please mute yourself. Aditya Vyas is saying no. What happened, Aditya? Please raise your hand. Yes, Aditya, please raise your hand. What happened? Where is Aditya? I can't see him. आदित्य, क्या हुआ? आपने नो लिखा है चैट रूम में, कुछ हुआ आपको? यस आदित्य। मैम, मैंने पहले वो आपने 32 के ओरल रिस्पॉन्स के बारे में पूछा था, इसलिए लिखा था नो। 32 के ओरल रिस्पॉन्स नहीं हुए हैं? चिल्ड्रन जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है पेज नंबर 32 पे अगर हो चुके हैं तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं हुए तो है गिव मी अ थम्स डाउन। ओके, ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो पेज नंबर 32 वाले हैं, अगर वो हो चुके हैं तो गिव मी अ थम्स अप, और अगर नहीं हुए हैं तो गिव मी अ थम्स डाउन। ओके, जस्ट टेल मी चिल्ड्रन, एवरीवन हो चुके हैं? ओके, निखिल इज सेइंग हो चुके हैं। एनीवन एल्स नोज कि ओरल रिस्पॉन्स 32 वाले हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? जस्ट टेल मी चिल्ड्रन। भरत इज टेलिंग हो चुके हैं, निहारिका इज टेलिंग हो चुके हैं। आदित्य, आई गेस क्वेश्चन जो पेज नंबर 32 वाले हैं वो हो चुके हैं। आपने नहीं थे कि लास्ट क्लास में? आई एम अनम्यूटिंग यू आदित्य। बाद में ये कहना ताकि सारी बातें नो मुझ मैम, तक आई वाज ट्रैवलिंग। You were traveling. Okay, so you can just ask from your classmates. Okay, जब भी बच्चों अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है, just simply ask from your classmates. क्वेश्चन जो आंसर्स हैं वो अपने क्लासमेट्स से पूछ लीजिए, बहुत वेरी इजी दे आर। ओके, एंड किसी को अगर कोई हेल्प के लिए पूछता है तो प्लीज उन्हें हेल्प करिए। ऐसा नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा आंसर, तुम तो मैम से पूछ लो। हमने डिस्कस किए हैं राइट आंसर, सो दिस इज यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर एंड you have to send to them. Okay, Aditya, you can please take the question and answers from some your classmate. Okay, so we were on page number 33. What was affecting them? The smoke from the chemical factory was affecting them. Okay, what decision was taken at the time of playing? क्या decision लिया गया at the time of playing? What decision was taken? Yes, children, answer. Aryan, I'm unmuting you. The decision was taken while time of the playing was the factory was shut down on the day of the match. Yeah. It was decided that the factory will be shut down on the day of the match. ये decide किया गया कि factory जो है वो match वाले दिन बंद कर दी जाएगी। Okay, Aryan, please mute yourself. ठीक है, तो क्या डिसीजन लिया गया मिस्टर प्रधान ने और टीम ने मिलके कि हम फैक्ट्री को बंद रखेंगे on the day of the match. Okay, the factory will be shut down on the day of the match. Okay, question number 1 on the next page. What was the position of the players? What was the position of the players? Players की क्या position थी? Harshita, please turn your camera on. Harshita, you're raising your hand, but your camera is not on. ये आदित्य व्यास, you're writing जीत के घर आ रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आदित्य, please raise your hand. Aditya, please raise your hand. This chat room is not your personal chat room, okay? Again, I'm telling you all, this chat room is not your personal chat room. Personal chat room नहीं है. आपको कोई पर्सनल टेक्स्ट करना है किसी को तो आप प्लीज व्हाट्सएप करिए, किसी को मैसेज करिए, कॉल करिए।
ये चैट रूम हम क्लास में, ये क्लास में वाला चैट रूम नहीं है कि इस पे चैट कर रहे हैं हम कि क्या हाल है और कैसा हाल है और मैं जीत के घर आऊं या मैं हार के घर आ रहा हूँ। ये सब के लिए नहीं है ये सब सिर्फ इसलिए है अगर कोई अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, किसी को कोई सुनने में या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, देन यू आस्क मी इन द चैट रूम। जीतना है हारना है, आंसर भी आप चैट रूम में नहीं दोगे। ओके, आंसर भी आपको हैंड रेस करके फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी तभी आप आंसर्स दोगे। आंसर्स भी मैं चैट रूम में नहीं लूंगी और कोई लिखेगा भी नहीं आंसर्स चैट रूम में। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। Okay, so question number 1, what was the position of the players? Harshita, I'm unmuting you. Yes, Harshita. The partnership of the Raju and Yes, the please. partnership of Raju and Ashok was made a lot. Hello. हाँ, please बोलिए बोलिए बोलिए. The partnership of Raju. The partnership of Ashok and Raju made Ashok. Yeah, Ashok and The Raju. partnership of Raju and Ashok. No, so Ashok and Raju made a lot of runs to win the match. yeah. So what was the position of the player? Harshita, please mute yourself. So Abhi, what was the position of the players? The players were very thrilled, and what has happened at the end? They were very happy to win the match, and by what they won the match? They won the match because of the partnership of Ashok and Raju. And at the beginning of the match, the players were very thrilled. Okay, who was oozing? Question number 2, who was oozing? Arnav, I'm unmuting you. Ma'am, the Nawab was oozing. The Nawabs were oozing confidence. Okay, Oozing. का मतलब भर भर के Oozing चीज आना, बहना. Okay, so the confidence of the Nawabs was oozing. Okay, please mute yourself, Arnav. Next one is who tossed the coin? Question number 3, who tossed the coin? Neha, I'm unmuting you. Mr. Pradhan tossed the coin. Yes, Mr. Prasan tossed the coin. Okay, T-O-S-S-E-D, tossed the coin. Neha, please mute yourself. Question number 4, what was the prize for the winning team? So, the winning team थी, उनका prize क्या था? What was the prize for the winning team? Aditya, I'm unmuting you. 20,000 rupees. मैंने किसी और को भी unmute कर दिया है क्या? तो अपने आप. Yes, the prize for the winning team was 20,000 rupees. Okay. So prize क्या था winning team का? 20,000 rupees था. Okay. Okay. Someone else is raising their hand. I guess we have completed the oral response questions. और भी बाकी हैं क्या? Okay. Okay. So there are, for today's assignment, you have to complete the questions on page number 33 and the exercise part. Okay. So आज आप क्या करोगे? जो आपका एक्सरसाइज पार्ट है वो और आपके जो ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बट फॉर टुडेज असाइनमेंट यू आर गोइंग टू कंप्लीट एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज पार्ट क्वेश्चंस एंड आल्सो द क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 33 पे 3 क्वेश्चंस हैं और जो आपके एक्सरसाइज पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करोगे अटेम्प्ट करने का। बुक के अंदर ही पेंसिल से लिख लेना, फिर हम जब डिस्कस करेंगे तो आप अगर आपका ठीक है तो देन ओके, if it's not correct then please erase it and write it again. Very easy. Okay, anyone else is having any doubt regarding today's class? Any doubt, anyone?